Hello students, how are you? Myself Abhik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today actually as you all know this I think Kali Puja is there, and everyone just I am requesting to you enjoy the Kali Puja as well, and just use these crackers and very safely, so that no other person and no other actually places should be actually affected by these crackers. So in this lecture actually for class 11 we are going to solve some trigonometrical questions, okay, by using transformation formulas. Okay, so in the last lecture I think some questions, maximum minimum pattern questions were solved. Okay, so in this lecture we are going to use the transformation formulas, and we will solve the NCERT based questions, 3.3 exercise, and most importantly the R.D. Sharma questions also. Okay, so in this lecture is going to be very interesting, and you need to very much attentive, and you need to be very much actually this constructive, and just you have to attend this class with proper attention. Just the summary concisely you can say, this lecture is going to be very important, and many questions I think might come, okay, from this lecture as well. Okay, so ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज है हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, पहले ही हम लोगों ने लिख लिया है. ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज क्या है? टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, ये सब फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिख लिया है ऑलरेडी. ठीक है, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूलाज हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है. तो यहाँ पर यही सब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज है. ठीक है, और कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज both are same actually, no, both are same, no difference will be there. On the same basis, on the same actually these formulas, these two exercises are dependent. Okay, so एक दो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद लिखो सॉल्व लिखे, सॉल्व 2 sin 5x into cos x, solve 2 sin 5x into cos x, 2 sin 5x into cos x. ये स्ट्रक्चर देखने में किसकी तरह लग रहा है? 2 sin a cos b, 2 sin a cos b. ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई? 2 sin a cos b. देखो तो sin a प्लस b, देखो तो ये चीज आपने लिखा था कि नहीं? sin a माइनस b, ये फॉर्मूला आपने लिखा था. 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. इट इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. ठीक है, तो 2 sin a cos b, दैट मीन्स a कितना है यहाँ पर? 5x, b कितना है? x. जस्ट यूज दिस फॉर्मूला. sin a plus b, that means 5x plus x plus sin a minus b, 5x minus x, sin 6x plus sin 4x. बस हो गया. वेरी सिंपल, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है, तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये सब. फिर sin 5 pi by 12 into cos pi by 12. देखो यहां पर sin a cos b इस फॉर्मेशन में तो है, sin a cos b, दैट मींस sin और cos मल्टीप्लिकेशन में तो है, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज एक्चुअली 2 should have been there, but you can see 2 is not there. So if you want to bring it this 2, then half should be multiplied, just like that. ऐसे ला सकते हैं क्या? देखो तो ऐसे तो शायद हम लोग ला सकते हैं, देखो है कि नहीं? तो
लाने के लिए हम लोगों ने सामने हाफ मल्टीप्लाई किया। क्यों हम लोगों ने 2 लिया है यहाँ? क्योंकि 2 लाने से क्या होता है, एक फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बन जाता है 2 sin a cos b। तो दैट मीन्स हाफ तो रहेगा, तो 2 sin a cos b दैट मीन्स sin a प्लस b, देखो a प्लस b प्लस sin a माइनस b, a माइनस b, ठीक है। हाफ साइन 6 पाई बाई 12 साइन, अच्छा साइन a माइनस बी है ना, ये a माइनस बी, तो ये होगा 4 पाई बाई 12, बस हो गया। तो यहां पर ये 2 और ये 3 साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो बस हो गया। हाफ साइन पाई बाई 2 मतलब 1, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री है ना, रूट 3 बाई 2, दैट मीन्स साइन 90 मतलब तो 1 होता है, और साइन 60 डिग्री मतलब रूट 3 बाई 2 होता है। बस हो गया। यहां तक आप आंसर जो है वो छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? क्यों मैंने सामने हाफ मल्टीप्लाई किया? बिकॉज विदाउट मल्टीप्लाइंग दिस हाफ वी कुडंट गेट द फॉर्मेशन, फॉर्मूला फॉर्मेशन, like 2 sin a sin b, 2 cos a cos b. Okay, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, these are all formula formations. So if you didn't multiply this half with this expression, then you couldn't get this 2 with this expression, and you couldn't use the formula as well. Okay, so that's why we have used this half with the given expression. इसलिए हम लोगों ने सामने हाफ मल्टीप्लाई किया है, और अगर मैंने यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी एक 2 आएगा, ठीक है। ओके, नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट prove that 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13, 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13, cos 5 pi by 13 इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, नाउ तो लेफ्ट हैंड साइड तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो साइज में बड़ा होता है उसी से ही हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये पूरा क्वेश्चन में ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, फॉर्मूला क्या होता है? cos a plus b, cos a plus b plus cos a minus b plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13, ठीक है। तो cos ये तो दोनों अगर प्लस करें 10 पाई बाई 13 प्लस cos माइनस 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, ठीक है। ओके, हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं cos के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव साइन रहे वो साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई
13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। ठीक है, तो ये सब टर्म्स यहां पर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करें? अब तो कुछ कैंसिल भी नहीं जाता है, हैं? कुछ कैंसिल नहीं होता है यहां पर, तो क्या करें? यहां पर देखो, तो एक काम करते हैं, ये जो 10 पाई बाई 13 है, कॉस, देखो तो ऐसे उसको लिख सकते हैं कि नहीं? पाई माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 13। देखो तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करो तो क्या होता है? एलसीएम 13 होता है, तो 13 पाई माइनस 3 पाई बाई 13 है ना, 10 पाई बाई 13। 10 पाई बाई 13 को 3 पाई माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 13, ये कैसे दिमाग में आया मुझे? मतलब हाउ कैन आई गेट दिस आइडिया that should have been written like that? Okay, this 10 पाई बाई 13। ओके, मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन में 10 पाई बाई 13 तो है और एक cos 3 पाई बाई 13 भी है। ठीक है, तो मैं तो यहां पर देख रहा हूं कि पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिखने से तो 10 पाई बाई 13 हो जाता है कि नहीं? सिमिलरली इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो तो 8 पाई बाई 13, उसको क्या लिखूं? तो बोलो तो पाई माइनस 5 पाई बाई 13 लिख सकते हैं क्या? देखो तो 8 पाई बाई 13 होता है। cos क्यों मैंने लिखा? क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ भी यहां पर कैंसल्स तो नहीं हो रहा है, कैंसलेशन तो नहीं हो रहा है। अब यहां पर तो क्या आंसर छोड़ूं? इट इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग्स, नो? ओके, सो तब दिमाग में आइडिया आया कि ये जो 10 पाई बाई 13, 8 पाई बाई 13, इसको मतलब किसी भी तरह स्प्लिट कर सकता हूं कि नहीं? तो मैं देख रहा हूं कि ये दोनों टर्म, जैसे 3 पाई बाई 13, 5 पाई बाई 13, ये दोनों यूज करके हम लोग 10 पाई बाई 13 और 8 पाई बाई 13 को हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपके सामने है। अब यहां पर पाई माइनस एक्स सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मेशन तो आप यूज कर सकते हैं। पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का केस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। पाई है, दैट मींस कॉस तो अनचेंज्ड रहेगा, कॉस तो कॉस ही रहेगा। फिर 3 पाई बाई 13, फिर माइनस ये भी कॉस 5 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। सब देखो कैंसिल हो जा रहा है, आंसर 0 आ रहा है, इक्वल्स राइट हैंड साइड। प्रूफ आ गया है कि नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग थोड़ा ये जो प्रोसेस है, ये आप लोग जब देखेंगे कि नहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 डिफरेंट टर्म आ रहा है, देखो 4 डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तब आपको दिमाग में यही लाना है। किसी भी एंगल्स को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे कैंसलेशन हो जाए। तो यहां पर मैंने देखा 10 पाई बाई 13 को हम लोग पाई माइनस 3 पाई बाई 13 ऐसे लिख सकते हैं। 8 पाई बाई 13 को पाई माइनस 5 पाई बाई 13 ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक स्ट्रक्चर है। इस प्रोसेस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपके दिमाग में जो है रखना है। जब कब आपके दिमाग में आना चाहिए? जब देखेंगे कि 4 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, कुछ कैंसिल यहां पर नहीं हो रहा है, तब ये चीज आपके दिमाग में लाना है कि हो सकता है कि इससे कैलकुलेशन जो है मिल जाए, आपको सॉल्यूशन मिल जाए। जो है हम लोग करेंगे भी प्रूव दैट prove that cos 20 40, prove that cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree equals to 1/16, 1/16। ये आपको प्रूफ करना है। सो हाउ कैन आई गेट द प्रूफ हियर? दिस इज द मेन क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज द बेसिक लेवल क्वेश्चन। Okay, and this type of questions are very important for the final exam. Okay, so this type of questions I think
मस्ट कम इन योर फाइनल एग्जाम. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं. cos 20. अच्छा, इसमें से ये बोलो तो जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख रहे हैं, इसमें से किसका वैल्यू आपको पता है? cos 20 का वैल्यू पता है क्या? आई डोंट थिंक सो. cos 40 का नहीं. cos 60 का? यस. cos 80 का? नहीं. cos 60 का तो वैल्यू पता है. तो cos 60 मतलब क्या है? cos 60 मतलब क्या है? हाफ होता है शायद. तो हाफ एटलीस्ट cos 60 का तो वैल्यू पता है, वो तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, cos 40, cos 80. ठीक है. अब देखो यहां पर cos 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 का टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में ये सब फॉर्मूलाज तो हम लोग को मिला है. 2 sin a cos b है, ये आपने फॉर्मूला लिखा है शायद. 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b. तो ये 4 फॉर्मूलाज तो आपको मिला है नहीं? सो दैट मीन्स ये सब फॉर्मूला से क्या पता चलता है? अगर साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में है, या फिर कॉस साइन मल्टीप्लीकेशन में है, या फिर कॉस कॉस मल्टीप्लीकेशन में है, या फिर साइन साइन मल्टीप्लीकेशन में है, देन हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. पर शर्त यह है 2 एक रहना चाहिए साथ में, है कि नहीं? अच्छा, यहां पर भी तो cos 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 3 cos मल्टीप्लीकेशन में है. तो 3 cos से हम लोग को क्या करना है? हम लोग 2 चूज करेंगे. 2 ये जैसे ये जो है ना cos a cos b, ये फॉर्मूला कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला यूज कर ले हम लोग. बट प्रॉब्लम ये है साथ में 2 होना चाहिए. तो 2 तो है नहीं, तो हम लोग सामने फिर से एक हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर एक 2 लाएंगे. 2 cos 20 cos 40 cos 80. ठीक है, तो देन 1/4. अब 2 cos a cos b का तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. cos 80 अलग से रहेगा, cos 80 साइड में रखो. नो नीड टू थिंक अबाउट दिस cos 80. okay, that will be considered the last part. okay, after this solution. तो 2 cos a cos b फॉर्मूला क्या है? cos a plus b, cos a plus b plus cos a minus b. देखो ठीक तरह से है, और cos 80 तो आप उधर लिखेंगे. so that means 1/4 cos 60 degree cos minus 20 degree bracket close cos 80 degree. तो 1/4 cos 60. cos 60 मतलब क्या होता है? cos 60 वैल्यू क्या होता है? हाफ प्लस. अब cos के अंदर माइनस साइन रहे, जैसे कि हम लोग जानते हैं cos के अंदर माइनस साइन ये एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, सो cos 20 और इधर cos 80. ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे. जैसे 1/4 1/2, दैट मीन्स 1/8 cos 80 प्लस 1/4 cos 20 इंटू cos 80. मल्टीप्लाई कर लिया. देखो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई तो आपने कर लिया. अब जो है 1/8 cos 80, यहां पर देखो फिर से cos cos मल्टीप्लीकेशन में आ गया है. तो फिर से अगर cos मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो फिर से हाफ लाना है कि नहीं? फिर से सामने आप हाफ लाओ, ऊपर 2 लाओ. लाने से क्या हो जाएगा? 2 cos a cos b. फॉर्मूला का फॉर्मेशन यहां पर बन जाएगा. सो फिर से अगर आप यहां पर हाफ लाएंगे तो पहले 1/4 था, अभी 1/8 हो जाएगा. फिर से 2 cos a cos b. So that means 1/8 cos 80
प्लस 1/8, अब फॉर्मूला तो बन जाएगा 2 cos A cos B, दैट मीन्स cos A प्लस B प्लस cos A minus B. So 1/8 cos 80 degree plus 1/8 cos 100 degree plus cos 20 minus 80 minus 60 degree. That means 1/8 cos 80 degree plus 1/8 cos 100 degree और cos minus 60 माइनस तो एब्सॉर्ब, cos 60 का तो यहाँ पर क्या आएगा, हाफ आएगा, है कि नहीं? तो 1/8 cos 80 डिग्री, 1/8 cos 100 डिग्री एंड देन 1/16. लो अब क्या करें, प्रूफ में तो सिर्फ 1/16 है, यहाँ पर तो बहुत सारा टर्म्स आ गया. 1/16 तो आया है बट उसके साथ 2 टर्म्स हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये जो बाकी 2 टर्म्स मिला वो बाकी 2 टर्म्स को किसी भी तरह यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कैंसिल होता है कि नहीं, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं, देखो. अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, 1/8 ये जो cos 80 डिग्री है ना, इसको अगर मैं 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री लिखूं, कोई भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और प्लस 1/16 तो है ही आपके पास, ठीक है? ऐसे तो लिख सकते हैं, क्या बोलते हो? तो यहां पर देखो 1/8 180 माइनस 100 कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस 100 सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव साइन देंगे, नेगेटिव cos 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/16. दैट मींस ये तो मिडिल में मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/16. देखो कैंसिल हो गया, 1/16 भी आ गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड भी आ गया, प्रूव्ड. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत अटेंटिवली करेंगे. साइन 10 डिग्री साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 इंटू साइन 60 इंटू साइन 70 इक्वल्स टू √3/16. ठीक है, ये लेक्चर को पॉज करो. यहाँ पर मेरे चैनल में आप लोग देख रहे हैं कि पूरा आर.डी. शर्मा सॉल्व हो रहा है, एनसीईआरटी सॉल्व हो रहा है, हाँ, बट कंपेरेटिवली व्यूज कम आ रहा है, वॉच टाइम भी कम आ रहा है, सब कुछ कम है, चैनल का ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रहा है. ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर शायद हो सकता है कोच यहाँ पर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई रिगार्डिंग एनी इश्यूज रिगार्डिंग माय टीचिंग, रिगार्डिंग द सेटअप, रिगार्डिंग एवरीथिंग, एंड जस्ट आई नो वेरी वेल दैट on this board some portion the light is some portion actually this light is reflecting, okay, and that's why I have cancelled this part, okay, and just I am solving all the questions and all the things except this part, okay. So initially I think this type of obstacles used to be there for every YouTube creator, for every YouTube educator, okay. So after day by day every educator, every YouTube creator, I think they used to improve themselves, okay, in the various fields. Technically they used to be very much sound, and technically actually this setup and this video quality, audio quality, just like that, okay. But initially everyone had faced the same problems whatever I am facing, okay. So I need your support. Without your support, without your actually this
inspirations, motivations, I can't move forward. Okay, so just try to motivate me and my channel with purportedly. Okay, so that I can prepare these videos for your better future, for your better conveniences. Okay, so just you can see if any teacher actually is providing this type of materials. Okay, then I think he used to demand 1400, 1500 and this 2000. Okay, in batch as well, but I am providing free of cost, so that you can actually this solve different types of questions and different things regarding the mathematics subject as well. And that's why just I am providing actually this as so much as possible. For me, I am providing all the things and all the facilities to the students as well. Okay, so please help me and just support my channel. I need your support. Thank you very much. Fair. लिखो साइन 10 डिग्री, साइन 50, साइन 60, साइन 70. साइन 10, साइन 10, साइन 50, साइन 60, साइन 70, I think, no? Sine 70. Sine 70 equals to root 3 by 16. So it is the question actually. Now actually this left hand side, in this left hand side part, amongst of all the terms and all the sine related terms, whose value is known for us? Sine 10, sine 50, sine 70 and sine this. So sine 60 value I think is well known. So sine 60 का वैल्यू एटलीस्ट हम लोग लिख लेते हैं रूट 3/2. बाकी जो टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं एक साथ ऐसे. ठीक है. फिर उसके बाद तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तो भाई साइन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है. अब साइन मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है, बाई 4 फिर से एक इधर 2 लाना है, साइन 10 और इधर साइन 50. ओके. और बाहर तो साइन 70 तो है ही. तो रूट 3/4 ये जो है ना, ये तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है. अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा देख लो. कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी साइन 70. So that means root 3/4 cos minus 40 degree minus cos 60 degree sin 70 degree. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं cos के अंदर नेगेटिव साइन नहीं रहता है, एब्सोल्यूट. cos 40 डिग्री माइनस cos 60. अच्छा, cos 60 मतलब क्या होता है, हाफ साइन 70. तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं रूट 3/4 cos 40 साइन 70 माइनस रूट 3/8 साइन 70. जस्ट वो ब्रैकेट को हटा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं. अच्छा, अब क्या करें, यहां पर तो रूट 3/4 फिर से यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो आ गया. cos a sin b, cos a sin b फिर से एक फॉर्मेशन में आ गया ना. cos a sin b सामने एक 2 रहना चाहिए, 2 cos a sin b, तभी तो जाके फॉर्मूला यूज होगा. तो फिर से एक हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 लाएंगे, 2 cos a sin b. बाकी जो है वो तो एज इट इज हम लोग लिख देंगे, यहां पर ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. फिर रूट 3/8 ये 2 ये जो है ना 2 cos a sin b साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b. रूट 3/8 साइन 70 डिग्री.
√3/8 साइन 110 डिग्री माइनस साइन इधर 30 डिग्री और इधर माइनस √3/2। अच्छा ये तो अच्छा ठीक है, ये 8 है और इधर √3/8 साइन 70 डिग्री। वेरी गुड। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस के अंदर माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, बट साइन के अंदर माइनस साइन एब्जॉर्ब नहीं होता है। माइनस अगर रहे वो बाहर निकल के आ जाता है, जैसे जस्ट लाइक दैट। मतलब दैट मींस कॉस फंक्शन का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा है, इसलिए माइनस साइन, ये जो वायरस है, माइनस साइन मतलब वायरस, ये माइनस साइन अंदर जाके कुछ इफेक्ट नहीं कर पाता है, वो मर जाता है। तो कॉस फंक्शन का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, साइन फंक्शन का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, इसलिए वो इन्फेक्टेड हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा करें तो क्या होता है, देखो तो क्या आता है, √3/8 साइन 110 डिग्री, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √3/8 साइन 30 डिग्री, ये तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री, है क्या नहीं? मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे तो यहां पर प्रूफ तो आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या है, √3/8 साइन 110 डिग्री प्लस √3/8 इंटू साइन 30 का मतलब क्या है, हाफ, माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री। अच्छा यहां पर तो देखो ये √3/16 तो आ गया, बट साथ में 2 टर्म भी आ गया। सो हाउ कैन आई एक्चुअली एलिमिनेट दिस 2 टर्म्स फॉर गेटिंग द प्रूफ? सो दोनों टर्म को कैंसिल करना है, बस हो गया, सीधा बात। कैंसिल कैसे करेंगे, √3/8 देखो तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 110 डिग्री, मतलब इसको 180 माइनस 70 अगर लिखें कोई प्रॉब्लम होता है? देखो तो साइन 70 √3/8 ये क्या होता है, साइन 180 माइनस 70, बोलो क्या होता है? तो देखो 180 माइनस 70 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, बस पॉजिटिव होगा। 180 है तो साइन ही रहेगा, 90 के साथ इवन मल्टीपल होने से चेंज नहीं होता है। तो 180 मतलब क्या है, 90 into 2 इवन मल्टीपल, उधर है साइन 70, लो आ गया, और क्या चाहिए, बाई √3/16 माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री, लो दोनों कैंसिल, √3/16 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन देता हूं, वो लोग आप होमवर्क करेंगे, ठीक है? होमवर्क करेंगे 10 20 10 40 60 80 10 40 10 60 10 80 equals to equals to 3। ये आपको प्रूफ करना, ठीक है? 10 देख के यहां पर घबराइएगा मत, 10 को साइन कोस में चेंज कर दो, बस वही है। मैं थोड़ा स्टार्टिंग यहां पर कर देता हूं, फिनिशिंग आप लोग दोगे, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड शुरू करोगे, 10 क्या है, 10 20 10 40 10 60 10 80। 10 60 का वैल्यू हम लोग को पता है
तो एटलीस्ट वो वैल्यू तो हम लोग लिख लेंगे 10 20 10 40 10 80, बस हो गया। अब 10 का तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं जिससे हम लोग सामने हाफ लाए और ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दें। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। सो क्या करेंगे, बट हाँ साइन कोस का तो है, साइन कोस का तो फॉर्मूला है। तो एक काम करते हैं, हर जगह आप साइन कोस लिख लीजिए। तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, है कि नहीं? सो बस हो गया। तो √3 ऊपर क्या है साइन 20 साइन 40 साइन 80, बस ये सब का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। नीचे क्या है cos 20 cos 40 cos 80, है? तो सोच लो कि ऊपर अलग कैलकुलेशन होगा साइन 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 का, नीचे अलग कैलकुलेशन होगा कॉस 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 का, बस हो गया। हाँ, तो वही ऊपर आपको 2 लाना है, सामने हाफ लाओ, 2 लाना है, सामने हाफ लाओ, सिर्फ सेम प्रोसेस आप लोग क्या अप्लाई करना है। तो ऊपर एक आंसर आएगा, नीचे एक आंसर आएगा, कैंसलेशन होगा, कैंसिल होके सिर्फ 3 रहेगा, बस यही है। ट्राई करोगे, ठीक है? ट्राई करके अगर नहीं आया तो मुझे आप लोग पूछोगे उसमें नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में। ओके, फिर प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये आप लोग ट्राई करोगे। प्रूव दैट prove that cos x 4 cos x into cos x plus pi by 3, I think pi by 3 plus x, pi by 3 plus x into cos pi by 3 minus x equals to pi by 3 minus x equals to cos 3x, cos 3x। ये आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? शुरू तो करेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, ये तो श्योर है कि नहीं? तो शुरू करो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। तो 4 cos x cos pi by 3 plus x cos pi by 3 minus x, ठीक है? तो cos है प्लस बी इंटू cos है माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है इसका है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है। ये आपके पास है फॉर्मूला। तो दैट मींस यहां पर देखो cos है प्लस बी इंटू cos है माइनस बी, ऐसा स्ट्रक्चर तो है ऑलरेडी आपके पास। अगर आप चाहें कि शॉर्टकट आप कैलकुलेशन कर लें तो ये प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा प्रोसेस भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो यहां पर cos स्क्वायर a, दैट मींस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो एक काम करते हैं कैलकुलेशन इजी के लिए, अच्छा देख लेते हैं। 4 cos x cos पाई बाय, दैट मींस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री तो यहां पर हाफ होता है, तो हाफ होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x। सो 4 cos x यहां पर तो 1/4 माइनस साइन स्क्वायर x, है कि नहीं? तो दैट मींस 4 cos x 1/4, ये साइन स्क्वायर x को अगर मैं cos में कन्वर्ट करूं 1, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर 4 cos x, ये दोनों अगर मैं कैलकुलेशन करूं 3/4 होता है, और प्लस cos स्क्वायर x, अब दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्या होता है? दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्या होता है? यहां पर तो ये माइनस होगा, तो मल्टीप्लाई करने से 3 cos x, देखो ये
और ये मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 4 और 4 कैंसिल होता है, -3 cos x प्लस 4 cos x इंटू cos स्क्वायर x, दैट मीन्स 4 cos क्यूब x, ऐसा कुछ बनता है। दैट मीन्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये जो प्रोसेस है ना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में चला गया। ये अगर शॉर्टकट मेथड में आप करना चाह रहे हैं तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, cos 3x का। ये आप लिख के रखिए। हाँ, और जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जब शुरू करेंगे ये एक्सरसाइज, इसको बोला जाता है मल्टीपल फॉर्मूला। ठीक है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये किसका फॉर्मूला है, cos 3x का। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्चुअली। ठीक है, इसको मल्टीपल फॉर्मूला बोला जाता है। और अगर आप जो नॉर्मल प्रोसेस है उस प्रोसेस में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव प्रोसेस देखिए लिख रखिए, 4 cos x cos पाई बाई 3 प्लस x cos पाई बाई 3 माइनस x। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, 2 cos x, ये 4 से एक 2 हम लोग उधार ले लेते हैं, लेके इसको दे देते हैं 2 cos पाई बाई 3 प्लस x cos पाई बाई 3 माइनस x। ठीक है, तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos x तो है ही। ये जो है ना 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। लिखो cos a प्लस b, a मतलब क्या है, पाई बाई 3 प्लस x, प्लस b मतलब क्या है, पाई बाई 3 माइनस x। हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दैट मीन्स ये माइनस b। हो गया, so that means 2 cos x, x यहां पर कैंसिल, यहां पर पाई बाई 3 कैंसिल, तो यहां पर cos पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60 प्लस 60 कितना होता है, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 प्लस cos ट्वाइस x प्लस x ट्वाइस x है ना। ठीक है, अब cos 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3 है क्या, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री होता है। अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं 2 पाई बाई 3 को, तो करके देखिए ना कितना होता है, 2 पाई मतलब 180 बाई 3 मतलब ये 60 120 होता है। तो 120 डिग्री cos प्राप्त में लिख कर रखिए, cos 120 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, cos 120 को 180 माइनस 60 लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फिर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, दैट मीन्स 180 माइनस दिस, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है, दो नेगेटिव साइन, 180 है दैट मीन्स cos तो cos ही रहेगा 60 डिग्री, दैट मीन्स माइनस हाफ आई थिंक ना। सो दैट मीन्स 2 cos x इधर होगा माइनस हाफ और उधर होगा cos ट्वाइस x। लो अभी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। ये तो ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है, अगर प्रूफ नहीं आया तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लो कितना यहाँ पर होता है, 2 2 तो कैंसिल, माइनस cos x तो आता है, ठीक है, प्लस 2 cos x cos ट्वाइस x। ठीक है, तो शुरू करो। ये जो है ना 2 cos a cos b माइनस cos x तो है, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, सो दैट मीन्स माइनस cos x प्लस cos 3x और यहाँ पर cos
माइनस एक्स। अब कॉस के अंदर माइनस रहे ना रहे, ये माइनस एब्जॉर्ब ही होना है, दोनों कैंसिल, cos 3x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल प्रोसेस। दैट मींस ये जो एक्सरसाइज चल रहा है इसका प्रोसेस, और पहला वाला प्रोसेस था थोड़े एडवांस पैटर्न से हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व किया है। एनसीईआरटी का भी किया है, फिर एनसीईआरटी मिसलेनियस का भी किया है, फिर आर डी शर्मा का भी हम लोगों ने यहाँ पर एक्सरसाइज जो है आर डी शर्मा का भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का बहुत सारा क्वेश्चंस किया है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पूरा पार्ट खत्म ही कर देंगे, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज press the like button, subscribe my channel, and share with your friends, with your classmates, and just view the lectures fully. Okay, पूरा देखो लेक्चर को, आधा देखने से कुछ नहीं होता रे भाई, पूरा देखो लेक्चर को पूरा देखो, फिर उसके बाद नोट कॉपी बनाओ, नोट कॉपी में आराम से करो कॉपीज। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, दैट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल try to actually to solve your doubt and to actually to sort out your problems. Okay, so thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.